Medicine Made Simple. Powered by Glen Eagles Hospitals. Swallowing a large tube going through the throat, it's a little apprehensive for the patient. Patient थोड़ा डर जाते हैं. So, ऐसे situation में what do you do, sir? This is a very common complaint. Right. बहुत ही common है and natural भी है. What is the usual time like one OGD scopy procedure? कितना लंबा चलता है सर? बोलते हैं कि आपको OGD scopy की जरूरत है. What are the common indications in your practice? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शमशेर सिंह चौहान है एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ग्लेन ईगल्स गैस्ट्रो टॉक. ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जो पेट की बीमारियों से एक साइंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे. पेट की बीमारियां एक्चुअली बहुत कॉमन है. एवरीबडी ऑफ अस हैव सफर्ड फॉर umpteen नंबर ऑफ इयर्स. मेनी ऑफ अस हैव हैड थोड़े सिम्टम्स, ज्यादा सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स. तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आज ये बात करेंगे कि एग्जैक्टली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सिम्टम्स क्या होता है. ये सीरीज ऑफ पॉडकास्ट इसीलिए है. आज एक कॉमन एंडोस्कोपी प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं ओजीडी स्कोपी. ये क्या होता है, इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे गेस्ट डॉक्टर मेघराज इंगले आए हैं. डॉक्टर मेघराज इंगले is a senior gastroenterologist and the director of gastroenterology services at Glen Eagles Hospital. He's been practicing for over 20 years and has done over 1 lakh procedures of endoscopy. Welcome to the show, Dr. Ingle. Hi, Dr. Shamsher. So, sir, in your vast experience of maybe 15 to 20 years in gastroenterology, आपने काफी सारे OGD scopy procedures किए होंगे. तो can you please explain to our viewers कि OGD scopy exactly होता क्या है? डॉक्टर शमशेर, OGD स्कोपी या जिसको बहुत कॉमनली वी रेफर टू एज जस्ट एंडोस्कोपी इज अ वेरी बेसिक प्रोसीजर जिसमें हम एक कैमरे के थ्रू वी एग्जामिन द फूड पाइप, दैट इज द इसोफेगस, स्टमक या पेट या जठर जिसको बोलते हैं, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द small intestine which is called as duodenum. Therefore the name is OGD scopy. ये एक बहुत ही basic procedure है. This is in fact gastroenterology में this is the first procedure that every gastroenterologist or endoscopist learns, and it takes around 5 to 7 minutes and it examines the entire upper digestive tract जिसे बोलते हैं. Right. So in your years of practice, the patients जो आपके पास OGD स्कोपी के लिए आते हैं या जिसको बोलते हैं कि आपको OGD स्कोपी की जरूरत है, what are the common indications in your practice, sir? एक तो if the patient has long standing acidity या पेट का जलन या indigestion which is not responding to treatment, जो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है या हो रहा है लेकिन patient is getting recurrent symptoms again and again, taking multiple courses of treatment. Okay. That is the commonest indication. तो जिसमें bloating, abdominal pain, reflux symptoms या heartburn या जिसको बोलते हैं, या commonly आजकल many people call this as GERD या reflux. उसमें अगर patient को heartburn है, सीने में जलन है, patients को swallowing difficulty है, patient बोल रहे हैं कि हमें निगलते समय तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ चुभ रहा है या कुछ अटक रहा है, ये 3 कॉमन इंडिकेशंस हैं जिसके लिए हम OGD स्कोपी एडवाइस करते हैं. Okay. In addition to that, there are certain indications which are not common, like patient को unexplained weight loss है and with some abdominal pain, we don't know the cause. Patients का hemoglobin कम हो रहा है, we don't know the cause. पेशेंट को कहीं डायग्नोज किया गया है लिवर डिजीज के साथ, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए भी हम OGD स्कोपी या एंडोस्कोपी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं. ओके. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस रूटीन इंडिकेशंस, blood and vomit would also be a common indication. Yes, one of the indications also is if the patient vomits either fresh red blood या red vomiting, या कभी-कभी patients come with black colored vomiting या very dark brown vomiting which is indicative of small amount of bleeding happening. So ऐसे condition में भी हम commonly patients को upper GI endoscopy या OGD scopy advise करते हैं. Okay. So
What is the usual time like one OGD scopy procedure? कितना लंबा चलता है सर? एक OGD scopy procedure approximately somewhere between 5 to 10-12 minutes का टाइम लेता तो है। छोटा प्रोसीजर है। छोटा सा प्रोसीजर है। ओके एंड बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि मेरे इस रिलेटिव का एंडोस्कोपी हुआ था, दे आर ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट बिकॉज यू नो swallowing a large tube going through the throat, it's a little apprehensive for the patient. पेशेंट थोड़ा डर जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में व्हाट डू यू डू सर? ये दिस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट, Right. बहुत ही कॉमन है एंड नेचुरल भी है। हाँ सो फर्स्ट इज वी एक्सप्लेन, हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हर पेशेंट का पेन टॉलरेंस अलग अलग होता है, दैट इज Right. फर्स्ट। सेकेंड, जो ट्यूब की चौड़ाई है, द ब्रेथ ऑफ द ट्यूब इज व्हाट मैटर्स एंड नॉट द लेंथ जनरली। राइट और जो नॉर्मल ब्रेथ एंडोस्कोपी का होता है अराउंड 9.5 मिलीमीटर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो हम कॉमनली जो क्रोसिंग की गोली खाते हैं उतना या उससे कम ब्रेथ की वो ट्यूब है। ओके सो एक्चुअली अगर हम, और इससे बहुत बड़ी बड़ी गोलियां हम लोग सॉलो करते हैं फॉर वेरियस कंडीशन। सो वी ऑलवेज टेल देम दैट डोंट वरी अबाउट द लेंथ, breath is an issue and breath is much smaller than most of the medication that you have. So swallowing will not be a problem. Yes, sometimes patients tend to vomit it out or they get scared. So हम बहुत precautions लेते हैं, patients का गला anesthetize करते हैं with either a spray or a gargle. We talk to the patient, make the patients calm and we proceed in a very slow manner. Yes, many times patients are not able to tolerate or they are very scared. इन ऐसे सिचुएशन में हम पेशेंट्स को माइल्ड नींद की दवा या सीडेशन जिसको बोलते हैं या वेरी लो ग्रेड एनेस्थीसिया देके ये प्रोसीजर करते हैं। ओके सो द पेशेंट इज कंफर्टेबल, यस, प्रोसीजर आराम से हो सके, एंड प्रोसीजर आराम से हो सके। राइट। दिस एनेस्थीसिया जैसे आप बोल रहे हैं, या विदाउट एनेस्थीसिया भी अगर किसी को ओजीडी स्कोपी कराना है, सो हाउ डज ही प्रिपेयर फॉर इट? इसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। पेशेंट्स को सिर्फ 8 to 9 आवर्स फास्टिंग रहना है। ओके सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द प्रोसीजर्स आर डन इन द मॉर्निंग। सो व्हाट वी टेल द पेशेंट की आप एक लाइट डिनर करिए एंड आफ्टर 12 midnight don't have anything and generally the procedure will be done somewhere between 8 to 10 a.m. in the morning. Okay. So patients has to be the only preparation that is required is patient को 8 to 10 hours fasting रहना है। अच्छा। इन एडिशन टू दैट अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, वो उनकी कोई रूटीन दवाइयाँ चालू हैं, जैसे थायराइड मेडिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं, पेशेंट्स को बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं फास्टिंग जा रहा हूँ तो मैं दवाई नहीं लूँ। इनफैक्ट ऐसे नहीं करना है आप, ओके, बिकॉज ऑफ द थोड़ा सा स्ट्रेस होता है प्रोसीजर का, राइट, तो बीपी बढ़ सकता है। बिल्कुल। सो हम एडवाइस करते हैं कि 6 o'clock इन द मॉर्निंग विथ हाफ ग्लास ऑफ वाटर आपकी जो एसेंशियल दवाई है, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई और थायराइड की दवाई हम जनरली बोलते हैं कि ले लीजिए। डायबिटीज की दवाई हम मना करते हैं बिकॉज पेशेंट विल बी फास्टिंग, तो ब्लड शुगर ड्रॉप ना हो जाए। बट ये दवाई जनरली हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि लेनी चाहिए। समटाइम्स सम पेशेंट्स हैव सर्टेन न्यूरोलॉजी का इशू और उनके लाइक फिट की दवाइयाँ चालू होती है कुछ पेशेंट्स की, तो वो भी हम बोलते हैं कि वो आपको सवेरे 6 बजे विथ हाफ ग्लास वाटर ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ओके ओके। बहुत बार पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो आप बायोप्सी मत लीजिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कुछ निकला बायोप्सी में तो कैंसर, अगर किसी को भगवान न करे हुआ तो वो स्प्रेड हो जाएगा। ये बायोप्सी का डर हमने काफी पेशेंट्स में देखा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? हाउ डू यू assess, counsel these set of patients? Yes. सबसे पहले I would like to tell the general public that in more than 80% of the cases gastroenterology में हम बायोप्सी नॉन कैंसरस बीमारियों के लिए लेते हैं। तो जब हम बायोप्सी बोलते हैं ज्यादातर ये नॉन कैंसरस लीजन्स के लिए लिया जाता है, लाइक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, स्वेलिंग। So when we discuss biopsy, it does not necessarily mean we are talking about cancer. True. That is the first important thing that I would like to tell everyone. Second, biopsy जब भी हम endoscopy से लेते हैं, it is a totally painless procedure. So the patient will not feel anything additional, right? Like needles in prick or a prick at all. So there is no fear. Third, अगर
मैलिग्नेंसी है या कैंसर है, तो हम जब एंडोस्कोपी से बायोप्सी लेते हैं उससे कैंसर फैलता नहीं है। ओके। और हमारे बायोप्सी से कैंसर बनता नहीं है। राइट। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपने बायोप्सी नहीं लिया होता तो कैंसर नहीं होता। ऐसी बात नहीं, कैंसर था इसलिए हमने बायोप्सी लिया और हमारे बायोप्सी से कैंसर फैला नहीं, जल्दी डिटेक्ट हो गया। राइट। सो आई डोंट थिंक पीपल शुड फियर बायोप्सी एट ऑल। आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए कि बायोप्सी लेना इज सेफ, इट्स नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, एंड अगर बायोप्सी लिया तो कैंसर है ऐसा नहीं है। Am I right, डॉक्टर मेघराज? Yes, absolutely right, डॉक्टर शमशेर। सर ये तो रूटीन प्रोसीजर्स के बारे में हुआ, एंडोस्कोपी, एसिडिटी वाले, रिफ्लक्स वाले। आपके एक्सपीरियंस में आपने काफी बार इमरजेंसी एंडोस्कोपी अदर नाइट, रात को 2 बजे 3 बजे आके भी किया होगा। क्या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उन पेशेंट्स में, वो क्या होते हैं, उनमें कैसे किया आपने, और हाउ डिड यू गो अबाउट मैनेजिंग सच डिफिकल्ट पेशेंट्स इन द मिडल ऑफ द नाइट? यस, सो फर्स्ट देयर आर 2 पहलू हैं मैनेजिंग ऑफ इमरजेंसी। एक तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट मेडिकली, एंड सेकेंड द पेशेंट एंड द रिलेटिव्स आर वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग in the middle of the night. So whenever any doctor does any procedure as an emergency, there is a lot of stress around the patient as well as the relatives. So first thing is that you have to be calm and explain to the patient, and if the patient is in a state to understand, and more importantly the relatives ki this is what is expected based on patient symptom और हम ये चीजें कर रहे हैं, और because ये एक emergency है there is a chance that ये करते समय थोड़े complications हो सकते हैं, and you have to assure them that we are taking due precautions to avoid complications. Right. And if at all complications happen, then we have all the necessary tools हमारे पास कि हम complications को manage करें. Right. Commonest indication of an emergency endoscopy is bleeding. Okay. If there is any bleeding from the food pipe, stomach और दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके लिए हमें ये कॉमन इंडिकेशन होता है कि जिसके लिए हमें इन द मिडल ऑफ द नाइट या एनी ऑड टाइम ऑफ द डे हमें आके एंडोस्कोपी करना पड़ता है। सेकेंड कॉमन इंडिकेशन है कि पेशेंट कुछ चीज़ खा रहे हैं एंड सडनली द फूड बोलस या समथिंग गेट स्टक, खाना अटक जाना फूड पाइप में। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली या तो बहुत छोटे बच्चों में या एल्डरली पेशेंट्स में या ऐसे किसी पेशेंट में जिसका कोई एब्नॉर्मलिटी हो फूड पाइप का। थर्ड कॉमन इंडिकेशन है कि कोई फॉरेन बॉडी चले गई हो, लाइक बच्चों में कॉइन्स, मैग्नेट्स, बैटरीज, और बड़े लोगों में उनके डेंचर्स। बहुत कॉमन इंडिकेशन है कि पीपल पुट डेंचर्स और उनके डेंचर्स वो स्वॉलो कर लेते हैं और वो अटक जाते हैं। उसको निकालने के लिए भी हमें इमरजेंसी एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। So endoscopy, I would like to tell the viewers that routine भी होता है, emergency में भी होता है. So if you are having issues, go to your gastroenterologist because they can do the procedure with their safety measures intact. So don't worry on that. Dr. Meghraj, our endoscopic services have evolved over the years. एंडोस्कोपी से कैंसर डिटेक्शन भी होता है और कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है सर? Yes, अभी like with everything we are evolving, and now we have come in the last decade, in last 10 years we have taken a giant leap towards innovations in endoscopy. Like we have got, you must सबने सुना होगा 4K TV monitors, similar 4K monitors are now available for endoscopy. We have various techniques in endoscopy where we can do zoom, like हमें कैमरा में, मोबाइल में या डिजिटल कैमराज में zoom है. The same technique is now being used in endoscopy. हम ऑलरेडी बहुत क्लोज जाते हैं स्टमक के या फूड पाइप के लाइनिंग में, हम और क्लोज जा सकते हैं. बिल्कुल. Now with various other techniques हम उस लेयर के नीचे का लेयर देख सकते हैं ताकि अगर अर्ली कैंसर डेवलप हो रहा है, before it can even show up on the surface we can detect it. Right. And with the era of AI now, we have various AI techniques in our software and imaging techniques where we can detect early cancer. We can treat early cancer in a non-surgical way, in a procedure that can take 2 to 3 hours, and the next day patient can go home completely cured of a cancer, which if not detected on time
couple of months later जिसको full fledged सर्जरी लग सकती है। Oh. तो अर्ली कैंसर डिटेक्शन में अब एंडोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल आ गया है, स्पेशली विद दिस न्यूअर टेक्निक्स एंड एआई, और उसको डिटेक्ट करके हम उसी टाइम पे या विद इन अ शॉर्ट स्पैन एंडोस्कोपी द्वारा ही उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। Thank you, Dr. Meghraj. So, just to wrap it up for today's first episode, Dr. Meghraj, can you give us an audience a little message कि ये OGD scopy के बारे में? If you had to just say a few things to just sum it up. First, if a doctor या आपका डॉक्टर अगर आपको OGD scopy के लिए रेफर करता है या भेजता है, don't get scared. It is a very basic procedure. It is relatively non-invasive. Non-invasive since we are not going to, there's no cutting or anything involved. We are going through a normal orifice. There is almost zero risk of any complication in an diagnostic OGD scopy. और बहुत बार ये outpatient procedure होता है, मतलब you come in, do the procedure and within an hour आप you can go back to your work. You don't need to take leave or anything. And it's a very safe procedure. और बहुत बार ये डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये करके ना हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है, बीमारियों की सीवियरिटी के बारे में पता चलता है, एंड अल्टीमेटली इसका बेनिफिट पेशेंट को ही होता है, सो दैट द राइट ट्रीटमेंट and the right duration of treatment the doctor can assess and give it to the patient. Right. So thank you so much for attending our first episode today. This is Dr. Chauhan signing off, and we'll see you again next time next week. Medicine Made Simple. Powered by Glen Eagles Hospitals, where good people make you feel better.